So, good morning. Today we will learn Indian Succession Act 1925. In Indian Succession Act, we will discuss about succession in property. What is mean by succession? It's very easy. So, there is a person, he died. Then his property should go to his heirs. His little master. So it is Mr. X. It is Master X. So the property should go from Mr. X to Master X. Mr. X to Master X without transfer. Without transfer. So why I am saying transfer in such a way? Reason is very simple. A transfer, when you say a transfer is only done within a limited period and a limited living persons. Transfer should not be done other than living persons. So if we just definitions, there are four main definitions. First is will, second is probate, third is administrator, and fourth is codicil. First is will. Will means a legal declaration, intention of testator with respect to his property to be carried out after his death. A legal declaration, it is a declaration, it is a public declaration about intention of testator. What is testator here? So, in this former example, I had not drawn correctly on iPad. Drawing correctly is very difficult. Means I am drawing not with Apple pencil, I am drawing with just a normal pencil. So here is Mr. X. So Mr. X is a testator. Mr. X who died before dying means he is alive. Before dying he is alive. When he is alive, he has intention to give his property to his son. Here his intention may be different also. Does not give his property to his son, but to give his property to a trust. So it depends upon the intentions of the person. So the person, Mr. X, has intentions to give his property to Mr. X son. So he is a testator and his intention will be declared legally. His intention should be declared legally. So probate means certified copy of will. Court certify copy of will. Probate is necessary in certain cases. So what is probate? Probate is just a certification of copy of will. Is not like a normal will. Normal will has a power to do anything, itself जो अपने आप से लीगल होती है डीड, बट प्रोबेट करने के बाद उसे एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये डीड जो है वो असली है. जो प्रूफ लाना पड़ता है प्रोबेट के वक्त वो डिफाइन करता है कि डीड असली है. एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? समझिए, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये मर गया और उसने अपनी विल एक दूसरे बच्चे के नाम पे कर दी. ये बच्चा या तो 18 साल का है या फिर ये अनसाउंड माइंड है. या तो ये 18 साल का है या फिर ये अनसाउंड माइंड है. इस कारण में हम ये डीड जो है वो इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 18 साल का है, अनसाउंड माइंड है. ये विल में मिली हुई प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है. क्योंकि ये एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है तो कोर्ट ऐसे केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर को, 'इशू' करती है, एडमिनिस्ट्रेटर को, 'इशू' करती है, 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 '
एडमिनिस्ट्रेटर को बनाती है जो इस प्रॉपर्टी की देखभाल करे जब तक ये बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता या फिर ये बच्चा साउंड माइंडेड नहीं हो जाता। ये यहाँ पे कहा गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इज इन एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटर एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी, competent authority appoint him. Here competent authority is court. And codicil is addition, explanation, alteration, disposition of a will, means an attachment to will. So suppose that the will have some words which needs explanation. The executor or the testator has done some execution or some words in the will which are not understandable, then you can adjust or attach a codicil to explain that word. So type of wills, there are two types of wills. First, privilege wills. Second, unprivileged wills. So if there is a privilege will, a privilege will is a privilege given to a soldier because soldiers are important people in the society. Soldiers fight for our country. They fight for our country and for our integrity of a nation. So it is possible that in war or such like situation they will die. But and that time, if they die, what will be their properties disposition will be? This question has arisen and lawmaker has made a act provision of privilege wills. There are privilege wills and unprivileged. सो प्रिविलेज बिल्स में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसमें आपको प्रिविलेज बिल्स में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनमें सोल्जर्स और एयरमैन्स को ज़्यादा सहूलियत मिलती है अपनी बिल बनाने के लिए। तो किस तरह की सहूलियत मिलती है हम इसे देखेंगे। तो इसमें कंडीशन ये है कि वो एक सोल्जर या एयरमैन होना चाहिए, वो किसी एक्सपीडिशन या वॉरफेयर में इन्वॉल्व होना चाहिए और उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसका प्रिविलेज विल बनता है। तो प्रिविलेज विल में क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से इसे प्रिविलेज कहा जाता है। तो पहली कंडीशन है प्रिविलेज विल ओरली भी दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसे कागज़ पे ही लिखा जाए। यहाँ तक कि अगर जो टेस्टेटर है, जिसका मतलब कि जैसे मिस्टर एक्स ही सोल्जर है, तो वो सोल्जर जो है वो अपना विल खुद अपने हाथों से लिख के बना सकता है और नीचे उसको साइन करने का बस ज़रूरत नहीं है अगर उसने अपने हाथों से बनाया हुआ। अगर किसी और ने उसका विल बनाया है तो नीचे से वो साइन भी कर दे तो बहुत है। और विल जो है वो वर्ड ऑफ माउथ का होता है, तो अगर वो वर्ड ऑफ माउथ है तो उसे रिटर्न में लेना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, अदरवाइज़ वो नल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अंडर प्रिविलेज विल्स में देखिए, अंडर प्रिविलेज विल्स में वर्ड ऑफ माउथ वाली विल जो है वो नल होती है बाय डिफ़ॉल्ट और साइन बाय टेस्टेटर इम्पोर्टेंट होता है और 2 और मोर विटनेसेस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या मैं लिख रहा हूँ। समझिए मिस्टर एक्स है, ये एक सोल्जर है। वो सोल्जर जो है वो वॉरफेयर में गए थे। ये गन है, वैसे दिख नहीं रही है पर ये गन है। तो सोल्जर जो है वो वॉरफेयर में गए थे और वॉरफेयर में जाने के बाद उन्होंने अपनी गन से बहुत सारे लोगों की, दुश्मनों की जान ली, पर दुश्मनों की गन से उनकी भी जान चली गई। अब ऐसे कंडीशन में वो नीचे पड़े हुए हैं, उनकी जान जाने ही वाली है और उन्होंने अपने एक दोस्त सोल्जर भाई को बताया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे होनी चाहिए। अब ये जो डीड है ये ओरली हो रही है, इस वजह से इसे टेस्टेटर, ये जो है ये टेस्टेटर है और ये जो है विटनेस है, तो इसमें विटनेस की ज़रूरत नहीं है, ये ओरली भी अपनी विल बता सकते हैं। परंतु समझिए ये ओरली बताने के बाद 1 महीने के अंदर हमें फिर से इस बिल को टेस्टिफाई करना होगा। क्यों करना होगा? समझिए सोल्जर को हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले गए
और सोल्जर वहाँ पे जाके 2 महीने बाद 2 मंथ बाद फिर से ज़िंदा हो गया, मतलब वो ज़िंदा ही था पर ठीक हो गया। अब इस कंडीशंस में उसकी विल जो है वो टेस्टिफाई नहीं हुई है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीधी सीधी बात है, लॉ मेकर्स ने कंडीशन बनाई कि अगर हम विल्स बनाते हैं ऐसी वाली, तो अगर ये सोल्जर है इसने ये विल बनाई तो 1 महीने बाद आपको चेक करना होगा कि क्या वो सोल्जर ज़िंदा है या चला गया। अगर वो ज़िंदा होगा तो विल को फिर 1 महीने बाद आपको बनाना होगा, या फिर विल को आपको एक बार टेस्टिफाई करना होगा, जिससे कि महीने महीने जाके आपको कोर्ट में जाके बताना होगा कि ये विल है पर सोल्जर अभी ज़िंदा है, मतलब टाइगर ज़िंदा है। अब इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी आती है, प्रोबेट, LOA और सक्सेशन सर्टिफिकेट। और हम सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करना विल का ज़रूरी है या नहीं। तो पहली बात, रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 wills इज़ ईजी so that registration to be done. However, suspicion exists without proof of registration can be done anytime, or special cases officer can show a residence on health and death. तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। समझिए, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये चल बसे 3 महीने बाद, ये 3 महीने बाद चल बसने वाले हैं। तो इन्होंने अपना एक विल बनाने के लिए, इनको पंख आने वाले हैं और ये उड़ के जाने वाले हैं, तो इन्होंने अपना विल बनाने के लिए दे दिया। अब इनका विल जो है वो रजिस्टर होना तो ज़रूरी हो, क्यों? क्योंकि इनके बच्चे बड़े नालायक, इनके बच्चों ने क्या किया, एक और विल बनाया जिसमें अपने नाम पे ज़्यादा प्रॉपर्टी ले ली और ट्रस्ट के नाम पे कम। समझिए, मिस्टर एक्स को लगता था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी अपने बच्चों को ना दूँ, बल्कि कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों को दूँ, और कुछ प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को दे दूँ जो मेरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अच्छे से करेगा। परंतु उनके बच्चे बड़े नालायक थे, उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ट्रस्ट को कुछ नहीं जाना चाहिए। इस कंडीशंस में अब बहुत आगे से सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट डीड्स को रजिस्टर करना, दो डिफरेंट डीड्स में से सही डीड पहचानना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस पहली डीड को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद वो डीड आप समझ सकते हैं कि ये डीड असली है और ये डीड नकली है। अब एक और कंडीशन आ गई, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जनरली मिस्टर एक्स को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होगा, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होगा। परंतु मिस्टर एक्स सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? तो सब रजिस्ट्रार ऐसे हालात में खुद मिस्टर एक्स के पास आ सकते हैं, उसकी वो कुछ फ़ीस लेंगे और वो मिस्टर एक्स के पास आ सकते हैं। वो उनके रेसिडेंस मतलब घर की जगह पे आके मिस्टर एक्स का बयान ले सकते हैं। ये कंडीशन कब होती है? जब हेल्थ हो और डेथ का प्रॉब्लम होता है, तभी ये कंडीशन होती है। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे कि प्रोबेट का क्या मतलब होता है, LOA का मतलब क्या होता है और सक्सेशन सर्टिफिकेट किसे कहा जाता है। तो प्रोबेट कहाँ ज़रूरी है?
cases where you are European, East Indian, Armenian, Jew, Indian Christian and Parsi, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई। तो अगर आप यूरोपियन हैं, ईस्ट इंडियन हैं, आर्मेनियन है, जू है, इंडियन क्रिश्चियन और पारसी है जो, और आप रह रहे हो चेन्नई, कलकत्ता या मुंबई में, तो आपके केसेस को प्रोबेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इस प्रोबेट की फ़ीस कितनी होती है? 25 रुपये होती है अगर 50,000 तक की प्रॉपर्टी हो। 50,000 से 2 लाख की प्रॉपर्टी हो तो 4% होता है, और 2 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी हो तो 7.5% होता है। इसकी लिमिट जो है वो 75,000 काउंटर की गई है। मतलब कि 10 लाख की प्रॉपर्टी तक आपकी जो 10 लाख की प्रॉपर्टी तक 75,000 लगेगा, उसके बाद 75,000 ही लगेगा। तो प्रोबेट करना मतलब क्या कि अपनी विल को फिर से एक बार टेस्टिफाई करके लाना कोर्ट में से, पर ये ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। एलओए के एडिशनल पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। हमने पहले देखा था कि एडमिनिस्टर कौन होता है और किसे अपॉइंट किया जाता है। एलओए क्या होता है? ये लेटर ऑफ अथॉरिटी होती है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है। तो ये कब आता है? टेस्टेटर अगर खुद से फेल हो जाता है एडमिन अपॉइंट करने में एग्जीक्यूटर को, तो या एग्जीक्यूटर डाई हो जाता है, मतलब रिफ्यूज़ कर देता है एडमिशन बिल को, तो 14 दिन के अंदर दूसरा एडमिनिस्टर आपको बिठाना पड़ता है। तो जैसे कि देखिए, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। समझिए, ये एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ये जाने वाले हैं, पर इन्होंने अपनी डीड में अपने नवासी को, मतलब बेटी की लड़की को, बेटी की लड़की बेटी की लड़की को अपना कारोबार सौंपने की इच्छा दर्शाई है, पर बेटी जो है वो जिंदा है और बेटी का जो पति है वो कह रहा है कि हमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अब ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं? तो मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी नाम पे करके बिना कुछ बताए चल बसे, इन्हें आ गए पंख, ये उड़ गए, पोपट जो था वो उड़ गया। अब ये तो उड़ गए, अब इनकी जो प्रॉपर्टी है ये इनके नाम पे आ रही है, तो इनकी बेटी और उनका हस्बैंड कह रहा है हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा बहुत है, आप अपना प्रॉपर्टी खुद देख लो। ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कंडीशन में हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम बेटी की जो प्रॉपर्टी है उसे किसी और को दे दें। तो ऐसे कंडीशंस में किसे किसे ये प्रॉपर्टी जा सकती है? तो 14 दिनों के अंदर ये प्रॉपर्टी जानी चाहिए। किसे किसे ये प्रॉपर्टी जा सकती है? बेटी तो कैंसिल हो गई, बेटी तो कैंसिल हो गई, तो ये प्रॉपर्टी किसे जाएगी? एक तो मिस्टर एक्स के क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, अपना अपना पैसा जितना उन्हें चाहिए उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, या दूसरा इसे किसी अपॉइंटर को अपॉइंट किया जाएगा। आगे हम देखेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ऐसा लीजिए कि कोई विल बनी ही नहीं, कोई विल बनी ही नहीं, मिस्टर एक्स ऐसे ही डायरेक्ट पंख लगा के उड़ गए, पंख लगा के उड़ गए, इसका मतलब है कि वो मर गए। तो in absence of a will or nominee not alive, legal heir can apply. This document gives right to collecting debt and scrutiny. Application to be made to district judge. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एब्सेंस हो, विल ही नहीं हो कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो नॉमिनी जो है अगर वो भी अलाइव नहीं है तो लीगल है अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी आप हमें दे दीजिए, इस प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये राइट देता है डेप्ट एंड स्क्रूटिनी का।
धन्यवाद। आज का सेशन यही ख़त्म होता है।